السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ تو زہرا، مدینے میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنتی عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم آستہ میں تھوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر بازار سے کچھ کھانا خرید لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں خرید رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دے دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے۔ اب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو،
उसके लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ, उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन 6 दिरहम की उसे बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वहाँ फकीर उनके पास आया और कहने लगा ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपने भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दवा को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीद दूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। मैं इस फकीर को 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। उसके बाद हजरत अली बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो उसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। फिर वहां से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना नामुमकिन है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से पाए? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शोहर अली भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, उसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई।
इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह बनी है। अब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत के सरदार हैं। आपसे मिलने की आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है कि लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है और मैं अपने शोहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये सुनकर अपने घर वापस लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे अपने साथ ले चले। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गए। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, है नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को लाई हैं उसके बारे में मैंने अपने शोहर से इजाज़त नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में इजाज़त लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शोहर से इजाज़त ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। आज भी आप वापस जाएं और कल आइएगा, मैं अपने शोहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है
और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शोहर घर आएगा तो शायद उसे वजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े। इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए पानी लेकर बैठी हूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तूने यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और ये रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शोहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शोहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सजा देने की कोशिश करें तो ये चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासर हुई। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बाजान, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शोहर की बहुत ही वफादार और अपने शोहर की खिदमत गुजार है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर कहा, अब्बाजान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? आप मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शोहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली इस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शोहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शोहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करता। ऐ फातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली से लेने के लिए कोई खरीदार नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वो इस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाईल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इस्राइल ने हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है और जिस घोड़े से हजरत अली ने तजारत की थी वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़ कर ले जाने वाली वो ही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़ कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे के बीवी को ये मकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की इज्जत, कदर और फरमाबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर
تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ